In the last meeting, we had completed the chapter's summary, and also I had done the first part, that is a baker from Goa. Today we are moving towards the second part and third, that is Coorg and tea from Assam. We are going to cover these two today, right? When we started the chapter, I told you that ये जो chapter है, this is about the beauty that lies in India. Yes, हम लोगों को पता है कि when we talk about any particular state or any particular city or any place, तो हमें पता है वहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है. But yes, there are certain hidden areas, some hidden secrets जो बहुत अच्छा लगता है. एंड मे बी हमें ये तो पता है कि टी कैसा होता है, लेकिन व्हाट आर द एग्जैक्टली जब उसको कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, दैट वी रीड. Coorg, I don't know how many of you are well aware, but yes, it's a very beautiful place, and it is a coffee country famous for its rainforest and spices because it lies on the Western Ghats. Easily. Also, when you are learning, learn all the word meanings that are given on your in your boxes. That would help you out. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore. मैंगलोर आपका जो है गोवा और बैंगलोर कर्नाटका के बीच में पड़ता है. आपकी जो फेमस एक्ट्रेस दीपिका पदुकोणे जो है, शी बिलोंग्स टू मैंगलोर. शिल्पा शेट्टी, देन ये all these Shetties, they all belong to Mangalore. Sits on a piece of heaven that must have drifted from kingdom of God. You can say that this is exaggeration, hyperbole. मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है कि वो जगह इतनी सुंदर है, कूर्ग, जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है. मैसूर आपका अंदर की तरफ है कर्नाटका में, एंड मैंगलोर इज कोस्ट, तो उन दोनों के बीच में आता है. एंड इट सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, मतलब इट इज सो ब्यूटिफुल. ऐसा लगता है दैट इट हैज बीन कैरीड फ्रॉम द हेवन. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, मतलब ऐसे घुमावदार हिल्स है, is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. मतलब यहाँ पर you will find people who are more indulged in war. मतलब हो सकता है कि उनका पुराना ऐसा रहा हो, they are more martial. Secondly, the women are very beautiful, and you can have a wild creature, or you can also say flora and fauna. Coorg or Kodugu. Kodugu is written in the Karnataka form. The smallest district in Karnataka is home to evergreen rainforest, spices, and coffee plantations. Since it is on the Western Ghats and there you have laterite soil, इसकी वजह से वहाँ पर क्या है कि you don't have more vegetation, but yes, you have the vegetation of coffee and spices. आपकी काली मिर्च, देन काजू, ये सब आपको वहाँ बहुत मिल जाते हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% of the district. During the monsoons it pours enough to keep many visitors away. मतलब इतनी बारिश होती है कि visitors वहाँ नहीं जा पाते हैं. Means the best season is when there is less rainfall. Rainfall वहाँ तकरीबन हमेशा रहता है. Most of the parts of the Western Ghats will be having rainfall incessantly. The season of joy commences. The season of joy मतलब यहाँ पर when people visit that area. The season of joy means a pleasant time, the time which is suitable for visiting that area, from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure.
मतलब बीच बीच में जो है थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, बट इन थ्रोन इन फॉर गुड मेशर, मतलब कि उससे क्या होता है, वहां का जो मौसम है वो और प्लेजेंट हो जाता है, इट बिकम्स मोर प्लेजेंट। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग, मतलब फैला हुआ एरोमा, फैला हुआ कॉफी, मतलब आप वहां अंदर जाओगे तो यू विल फील द एरोमा ऑफ कॉफी स्प्रेड ऑल ओवर इन द एयर। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोस, जब पुराने ज़माने में कॉलोनियल्स वहाँ रहते थे तो उनके बंगलोस स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। टक्ड मतलब कैनोपीज आपके होते हैं रूफ लाइफ कवरिंग, ऐसे मतलब जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनके नीचे बने हुए, मीन्स चारों तरफ आपके पेड़ों से घिरे हुए, पेड़ों से घिरे हुए। The fiercely independent people of Coorg are possibly, now ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, that what do you know about the descendant of Coorgis, मतलब कूर्गी कहाँ से आए थे। देर इज नथिंग कॉन्क्रीट, कुछ भी ऐसा नहीं पता है कि कहाँ से आए थे। कुछ लोगों का मानना है दे आर ग्रीक, कुछ लोगों का मानना है अरबिक, सो देर आर टू डिफरेंट स्टोरीज दैट गोज ऑन। द फियर्सली इंडिपेंडेंट मतलब दे आर वेरी ब्रेव, यहाँ फियर्स इज नॉट फॉर डेंजर, यहाँ पर उनका कहने का मतलब है वेरी ब्रेव। Here the fears has been used in place of courageous, are possibly of Greek or Arabic descent, या तो वो ग्रीक्स है या अरबिक है। क्यों? As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। मतलब जब Alexander's army came to India, वो वापस जा रहे थे but they could not find the way। when it was impossible for them to go, it became impractical, मतलब यहाँ पर impossible, here impractical has been used for impossible, तो they have settled here। और कहा जाता है these people married among the local and their culture is apparent in the martial tradition, marriage, religious rites which are distinct from Hindu mainstream। मतलब ये इसीलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ सेटल हो गए थे, फिर उन्होंने यहीं पे जो लोग हैं उनसे शादी वादी कर ली थी, और ये चीज वहाँ की जो उनका मार्शल ट्रेडिशन है, मतलब उनके जो मैरिजेस हैं उनमें भी दे हैव सर्टन सेरेमनीज जिसके अंदर दे शो देयर मार्शल आर्ट्स, उनके जो मार्शल आर्ट्स हैं वो शो करते हैं, विच इज नॉट इन आर, हमारे ट्रेडिशंस में नहीं होता। जितने भी उनके रिलीजियस या मैरिज राइट्स हैं उनमें you can find such rituals, normally it is not found in the Hindu mainstream। नॉर्थ ईस्ट के कुछ है, देर आर सम रिचुअल्स इन नॉर्थ ईस्ट बट नॉट इन द मेन हिंदू स्ट्रीम्स में नहीं है, सो दैट इज वाई पीपल थिंक दैट दे बिलोंग टू अलेक्जेंडर्स आर्मी। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered belt worn by the Kodovus. Kodovus are the people of Coorg। वहाँ के लोगों का नाम है मतलब उनको ओवरऑल हम कोदोवूज बुलाते हैं। नोन एज कपिया, इट रिसेंबल्स अ कफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड खुर्द, मतलब जो अरबियंस हैं वो लोग वो कप्तान पहनते हैं ना लंबा सा, इट इज ऑलरेडी हियर, इट इज द लॉन्ग ड्रेस, बिल्कुल वैसा लगता है ऐसे। सो दैट इज व्हाई दे थिंक कि उनकी जो ड्रेस है उनको देख के उन्हें लगता है इट माइट बी अरब्स, बट उनके जो रिचुअल्स हैं उनके जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें देख के लगता है कि दे आर ट्रेडिशनली ग्रीक्स फ्रॉम द अलेक्जेंडर्स आर्मी, but there is nothing concrete, nobody knows। This paragraph, this comes as explanation, how can we say that it is a tradition of hospitality, or you can say the most beautiful regiment? Coorgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। मतलब
अगर आप वहाँ जाते हो उनके घरों में, तो यू विल फाइंड देम वेरी वेरी फ्रेंडली। ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। दे आर वेरी मच गुड इन मेहमान नवाजी। एंड दे वुड ऑल्सो टेल यू द स्टोरीज, वो आपको अपनी कहानियां सुनाते हैं। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, मतलब वो याद करते हैं। एंड दे टेल यू द स्टोरीज ऑफ देयर सन, देयर फादर, ऑफ द करेज एंड ब्रेवरी, मतलब रिलेटेड टू वॉर, because many of the Kurgis are there in the regiments. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army. अगर आप लोग अभी 26 जनवरी देखोगे टैब्ल्यू तो उसमें देखना। एंड इवन द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ Kurgi. Even now, the Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. If we have to, you know, uh, keep a firearm, we need a proper license. Whereas these people are allowed to keep it without any license. This is because of their valor, their courage, their tradition, their tribal beliefs. मतलब आपसे कई कई चीजों पे जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। द रिवर कावेरी जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज अबाउट देयर करेज, अबाउट हाउ इंडियन आर्मी के जो चीफ थे देवर, ही वाज आल्सो अ कूर्गी। द नेक्स्ट इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ रिवर कावेरी। एज आई टोल्ड यू कि रिवर कावेरी जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी, एंड ब्रह्मगिरी आपका जो है कूर्ग के ऊपर है। दिस द टॉप ऑफ द माउंटेन जहां पर आपका जो रिवर कावेरी है इट ओरिजिनेट्स एंड कम्स डाउन। The river Kaveri obtains its water from hills and forest of Coorg. Means इसका मतलब है it originates from Coorg. It originates from ब्रह्मगिरी। ये जो है वहां पे ब्रह्मगिरी में ओरिजिनेट होता है। महासीर, इट इज अ नेम ऑफ अ फिश, बहुत बड़ा, बट दिस इज अ फ्रेश वाटर फिश, इट्स नॉट अ सॉल्ट वाटर फिश। अबाउंड इन दीज वाटर मतलब आपको यहाँ पर ये बहुत सारे पाए जाते हैं। Kingfishers dive for their catch. This is about the flora and fauna that is there. मतलब वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है ये उसके बारे में बताया जा रहा है। आगे मतलब उसके बारे में बताया जाएगा प्लांट्स वगैरह। द किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच मतलब आप इन पानियों में यू कैन सी ऊपर से किंगफिशर जो है नीचे मछली को पकड़ने के लिए दे डाइव। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit, this has come in the paper, for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. मतलब squirrels and langur क्या करते हैं, ऊपर से फ्रूट खाएंगे और उसको उठा के पानी में ठप फेंकेंगे। सो व्हेन वो पानी में गिरेगा तो या तो वो छपकेगा और उसमें जो है पानी में जो है वो रिपल इफेक्ट आ जाता है, जो उसको देखने के लिए दे वुड पुट द दे वुड ईट द फ्रूट और उसको उठा के नीचे डाल देंगे। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. मतलब वहां पर आपको जो है यू विल ऑल्सो फाइंड, मतलब यहाँ पर what are the things you find the fish, you find kingfishers, you find langurs, you find squirrels, and you will find number of elephants, and they are वहां पर जो है उनको नहलाया धुलाया जाता है। उनके जो महावत होते हैं, महावत्स मतलब महावत, the one who rides the elephant. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing. मतलब the most laid back individual become converts मतलब you will find a number of activities। यहाँ आपको बहुत सारे जो है activities दिखाई देते हैं वहां पर river water में, जहाँ लोग जो है if they are bored, अगर वो बोर हो जाते हैं, द लेड बैक इंडिविजुअल्स मतलब जब बोर हो जाते हैं तो दे बिकम एनर्जेटिक
when they enjoy these activities. वहाँ रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, मतलब एक छोटा सा बोट जिस पर हम चलाते हैं, रैपलिंग होता है, वो आजकल होता है ना, क्लिफ से नीचे से उल्टा लटका के नीचे डाल देते हैं, एक रोप होता है, उसको नीचे टांग देते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रेकर्स. उसके अलावा ट्रेकिंग वगैरह है, एंड nowadays trekking has really come up with an adventurous sports. Then ये जो next है, that's about the birds and insects. Birds, bees and butterflies. It's alliteration, as you can see, are there to give you company. मतलब apart from the beauty of the nature, besides the wild animals, you can also find a number of birds, a number of bees, butterflies, वहाँ पर आपको वो भी मिल जाते हैं. Macacus, Malabar squirrel, लंगूर एंड स्लेंडर लॉरस आपको जो है वहाँ पर मैकेक्स होते हैं आपके अ काइंड ऑफ मंकी. मैकेक्स जो होते हैं दे आर अ काइंड ऑफ मंकी. ये आपके गोरिल्ला के जैसे होते हैं. दे आर जस्ट लाइक द गोरिल्लास. एंड लॉरस इज अगेन अगेन ऑल्सो, ये भी एक प्राइमेट होता है बेसिकली. कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, मतलब आप जब जंगल में घूमने जाते हो तो आपको जो उनकी ट्री की जो छत होती है, ट्री की कोई छत नहीं होती है, द मतलब कि क्योंकि एवरग्रीन है तो ब्रॉड लीव्स होते हैं ऐसे चौड़े हुए, तो उनके ऊपर ये चढ़े हुए होते हैं. आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. यहाँ पर आई इज यूज फॉर द नरेटर. वो कहता है मैं बाकी चीज़ों से तो नहीं डरता हूँ, लेकिन जब वहाँ एलिफेंट्स आते हैं तो मैं उनको उनके लिए जगह दे देता हूँ, बिकॉज दे आर वाइल्ड, दे कैन अटैक यू. द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, जब आप वहाँ ऊपर की तरफ जाते हो जहाँ आपका रिवर कावेरी ओरिजिनेट होता है, brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको नीचे पूरा एकदम धुंध मतलब कि मिस्ट से भरा हुआ ब्यूटिफुल आपको सीनरी जो है वो दिखाई देती है. द एंटायर कूर्ग आपको नजर आता है. अ वॉक अक्रॉस द रोप, मतलब वहां पे एक रोप ब्रिज है, अगर आप उसको क्रॉस करके उस तरफ जाते हो you will find 64-acre island of Nishar Gadham. This is very lesser known fact. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. मतलब वहाँ पर निशार गदम में जो है यू विल फाइंड द बुद्धिस्ट मॉन्क. वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो बुद्धिस्ट का मतलब कि रिफ्यूज है, वहाँ वो लोग रहते हैं. द मॉन्क्स इन रेड, मॉन्क्स मतलब संत जो सेंट्स होते हैं, इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स. ऑकर मतलब ऑरेंजिश कलर, और वो जो रोब्स होते हैं वो जो कोट सा पहनते हैं ना वो लोग, उसको रोब्स बोला जाता है. वो जो येलो सा लंबा सा वो पहनते हैं उसको. आर अमंग द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग. और जब आप वहां जाते हो तो आपको वहां पर बाकी चीजें तो चलो कूर्ग के बारे में यू मस्ट हैव रेड, यू मस्ट हैव सीन इन द टीवी, बट ये जो एरिया है निशार गधम, दैट इज एन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड. जब आप वहां जाते हो तो वहां आपको एक अलग सी दुनिया दिखाई देती है जहां आपको बुद्धिस्ट सेटलमेंट दिखाई देता है. दिस इज द फैक्ट फाइल दैट कूर्ग अगर आपको जाना है तो मदिकेरी ये आपका हेडक्वार्टर है कूर्ग का. द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू. मतलब आपको जो है इट विल अट्रैक्ट. फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफी एस्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कूर्गी एक्सपीरियंस. इफ यू गो बाय एयर, सबसे पास नज़दीक है आपका मैंगलोर और देन बैंगलोर. यू कैन टेक फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गोवा, कहीं से भी, और फिर मैंगलोर से यू हैव टू टेक अ बस और समथिंग लाइक दैट.
For the rail again, Mysore, Mangalore and Hassan. By road, either from Bangalore या फिर मैसूर से आप जा सकते हो थ्रू नीलमंगल, कुनिगल एंड चन्यारनपट्टनम. These are the ways through which you can reach Coorg. वैसे तो if you reach तमिलनाडु, if you reach Bangalore, if you reach कोडेकनाल, वहाँ से आपको जो है ना रेगुलर सर्विसेज मिलते हैं. You have regular services there. In Madurai also you have the services, in Bengaluru, in Mysuru. अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ से आपको जो है पूरी ट्रेन वहाँ मिल जाता है. So this is the story of what we call as Coorg. The next, and that is the third part, it is a simple explanation of Assam and its beauty. See, we all know that Darjeeling and Assam, they are famous for their tea. But we can never experience, see, it is said that if you want to experience the beauty, it is always good that you visit there. लेकिन अगर हम नहीं भी जा रहे हैं through this chapter, we are able to understand that how, it looks. It is really a nostalgic feeling when you are inside such area. Chai garam garam chai. A vendor called out in a high pitched voice. The boys, that is Pranjal and Rajveer, दोनों जो हैं they are sitting in the train. And उस वक्त में शायद ट्रेन जो है it has stopped at a station. So the tea person is there. He came up to their window and asked chai saab. And Pranjal said, give us 2 cups. They sipped the steaming hot liquid. मतलब धीरे धीरे चुस्की लेकर पी रहे थे. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. यहाँ पर sip the steaming tea to all our alliteration. वहाँ हर एक जो है चाय पी रहा था. And at that point, Rajveer said, do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? मतलब actually before coming there, शायद राजवीर जो है he had searched about the area about tea, so he gave his knowledge कि एक दिन में पूरे वर्ल्ड में around 80 crore tea is drunk. View प्रांजल, tea really is very popular. एक्चुअली हम लोग जो है टी को सिर्फ इंडिया से जो है we normally, but nowadays tea is popular among all the countries. In fact, in some of the countries it's not drunk as beverage, it is drunk as medicine. हम आजकल the girls might be knowing what you call as, वो कौन सा टी होता है, हर्बल टी, दिस ग्रीन टी, येलो टी, रेड टी करके पीते हैं ना. They are all drunk as medicines. The train pulled out of the station. मतलब अब धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी. Pranjal buried his nose in his detective book again. Pranjal buried his nose, मतलब buried his nose is a phrase. मतलब वो पढ़ने में मस्त हो गया. He was busy in reading his detective book. यहाँ पर buried his nose in his detective book again में आपका assonance is there. The letter I is repeated. Rajveer too was an ardent मतलब very active, prevalent, बहुत ही मतलब वो उसको भी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद था. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. लेकिन अभी उसका मन कुछ भी बुक पढ़ने का नहीं था. अभी तो वो सीनरी को एंजॉय करना चाहता था. He wanted to enjoy each and every moment that the train was passing through. It was green everywhere. Means चारों तरफ उसको हरियाली नजर आ रही थी. Rajveer had never seen so much greenery before. उसने तो पहले कभी देखी नहीं थी. Then the soft green paddy fields. पहले जो है पैडी फील्ड थे. मैंने उस दिन आपको बताया था ना when I was summarizing the chapter
कि असम के अंदर यू विल फाइंड 3 kinds ऑफ पैडी, दैट इज ऑस, अमन एंड बोरा. वहां आपके पैडी फील्ड्स हैं. पैडी मीन्स राइस फील्ड्स. गेव अवे गेव वे टू टी बुशेस, मतलब पहले आपके चावल के आए, उसके बाद आपके टी के जो झाड़ हैं वो स्टार्ट हो गए, झाड़ियां. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मतलब बहुत सुंदर था. क्यों? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. मतलब दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड ओनली द टी गार्डन स्प्रेड ओवर द एरिया. मतलब एक तरफ आपके जो है पीछे की तरफ पूरा हिल, और उसके नीचे आपको जो है यू विल फाइंड द टी बुशेस. ड्वार्फिंग, ड्वार्फ मतलब छोटा करना. यहाँ पर ड्वार्फिंग का, वैसे तो ड्वार्फ होता है बौना, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, लेकिन यहाँ यूज हुआ है, इट इज यूज्ड एज वर्ब. इट हैज बीन यूज्ड एज वर्ब. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amid the orderly row of bushes, busily moved the doll-like figures. मतलब ऐसा लग रहा था कि जो बड़े बड़े आपके ट्रीज थे, स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग, जो शेड दे रहे थे, शेल्टर दे रहे थे, उनके नीचे ये टी बुशेस जो हैं छोटे छोटे बौने से लग रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे वो गुड़िया हो, बिल्कुल रो में बने हुए थे. दे वर ऑल इन एन ऑर्डर, ऑर्डरली रो मतलब एकदम ऑर्डर में थे. एंड ऐसा लग रहा था जब वो गाड़ी चल रही थी तो छोटे 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 गुड्डे गुड़िया जो है वो मूव कर रहे हैं. यहाँ पर एज फॉर एज एंड डॉल लाइक फिगर्स दोनों सिमिली है. एंड बुशेस बिजिली आपका जो है इट इज अलिट्रेशन. In the distance was an ugly building with smoke billowing out all tall chimneys. This is यहाँ पर जो है the narrator has brought up कि इस खूबसूरती को, the beauty of nature, the beauty of greenery, इसको जो है it was spoiling. क्योंकि वहां अगली क्यों बोला हुआ? why the building has been called as ugly, it is personification. why the building has been called ugly? because it was taking out the smoke. मतलब वो शायद कोई इंडस्ट्री है तो उसके अंदर से आपके जो स्मोक है वो चिमनी से बाहर आ रहा था. सो इट वॉज स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द एरिया. तभी राजवीर चिल्लाया, ए अ टी गार्डन, वाओ. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. प्रांजल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो तो वहीं का रहने वाला था. ही हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर. उसके तो पापा वहीं के टी एस्टेट के मैनेजर थे. ओ, दिस इज टी कंट्री नाउ. अब तो तुम टी के देश में आ गए हो भाई. मतलब उनका कहने का मतलब है दिस इज टी कंट्री, मतलब यू विल फाइंड टी बुशेस ऑल ओवर हियर. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. मतलब तुम पूरी जिंदगी याद करते रह जाओगे, इतने गार्डन है. मतलब you will remember it forever. You will remember it forever. I have been reading as much as I could about tea. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Legends मतलब stories, कहानियाँ. There are many stories. तो उसने पूछा what legends, क्या कहानी है बताओ. Well, there is the one about Chinese emperor who always boiled water before drinking it. मतलब एक कहानी ये जाती है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी को उबाल के पीता था. एज आई टोल्ड यू दैट डे कि ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री. तो कुछ आपके जो लीव्स थे, ट्विग्स, छोटे छोटे, दे came into the pot and that gave the water a delicious flavor. और कहा जाता है कि that was the tea leaves जिसकी वजह से वो फ्लेवर आया था. ये एक कहानी है and most of the people go with this story only.
Most of the people go with the story only. Tell me another scoffed Pranjal. अब उसने बोला कि दूसरी स्टोरी क्या है. चलो, ये तो एक स्टोरी है, दूसरी क्या है. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic. एसेटिक होते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं. दूसरी कहानी ये है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे. कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. उसने कहा कि उसने अपने जो आईलिड्स हैं उसने उसको काट दिया था. क्यों? बिकॉज उसको लगता था कि जब वो मेडिटेट करता है तो वो सो जाता है. टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रॉन्जल. तो स्कॉफ्ड का मतलब होता है थोड़ा इरिटेट होके. दूसरी भी बता दो. ऐसे मतलब चिढ़ाते हुए. स्कॉफ्ड इज लाइक बोलना चिढ़ाते हुए. अच्छा, दो कहानियां हैं. चलो, दूसरी भी बता दो जरा. नॉट इन अ फ्रेंडली मैनर बट इन एन इरिटेटिंग मैनर. 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स. और जहां उसने अपने वो जो आईलिड्स थे वो दबाया था, वहां 10 छोटे छोटे प्लांट्स आ गए थे. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप. और कहा जाता है कि जब इन प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको पानी में डालकर उबाल के पीते हैं तो नींद उड़ जाती है. टी वॉज ड्रंक इन फर्स्ट ड्रंक इन चाइना as far back as 27 BC. In fact, the words like chai, चीनी are from Chinese. मतलब उसने अपनी आगे बताया कि वैसे सबसे पहले जो चाय है वो कहा जाता है चाइना में ही पिया गया था. तभी जो वर्ड है चीनी, चीनी के बर्तन हम बोलते हैं. चीनी के बर्तन होते हैं द वन जो जो कप एंड प्लेट होता है उसको हम लोग चीनी बर्तन भी बोलते हैं. तो दैट इज ऑल दे से कि इट इज अ चाइनीज वर्ड. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than beverage. और टी जो है दैट वाज इम्पोर्टेड टू यूरोप, लेकिन यूरोप के अंदर इट इज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन. अभी भी अगर आप जाओगे तो देयर यू विल फाइंड इट मोर लाइक अ मेडिसिन देन एज बेवरेज. बेवरेज आपका होता है समथिंग विच वी ड्रिंक फॉर और जस्ट फॉर अवर कंटेंटमेंट, जैसे चाय, कॉफी, लस्सी. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन. क्लैटर्ड मतलब वो रुक गया था विद द क्लैटरिंग साउंड. द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. उन्होंने अपने सामान उठाया एंड दे वेंट टू द प्लेटफॉर्म. Clattered is onomatopoeia because that's a sound word. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhikia Bari, the tea garden managed by Pranjal's father. अब वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, but they were living in a tea garden and his father was a manager of that area. An hour later, the car veered sharply off the main road. थोड़े देर बाद, करीब 1 घंटे के बाद जो है गाड़ी भागने लगी. means suddenly it changed the direction. car veered sharply off मतलब एकदम से direction change करते हुए it started moving fast. Then they crossed a cattle bridge and entered धिकियाबाड़ी टी एस्टेट. उसके बाद उन्होंने जो है एक छोटा सा ब्रिज था जिस पर चरवाहे अपने कैटल को चराते थे, उसको क्रॉस करते हुए वो लोग टी एस्टेट के अंदर चले गए. On both sides of the gravel होते हैं कंकड़, not the plain road but कंकड़ गिरे हुए रोड. were acre upon acre of tea bushes all neatly pruned to the same height. दोनों तरफ जो बीच में सड़क थी वो तो आपकी ऊबड़ खाबड़ थी. इट वॉज फुल ऑफ ग्रेवल्स. लेकिन दोनों तरफ अगर वो देखे तो उन्हें सिर्फ टी बुशेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो टी बुशेस थे उनको एक ही साइज में काट के रखा था. प्रून मतलब उनको कटिंग करना. ग्रुप्स ऑफ टी pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. और वहाँ you could see the people
वो लोग छोटे छोटे जो आपके लीव्स हैं उनको तोड़ रहे थे और उनके पीछे जो है बैम्बू बास्केट था, क्योंकि वो लोग प्लक करके उसमें डालते थे. टी प्लकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस वर्क. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तभी जो है सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था और उसके अंदर जो है टी लीव्स का पूरा एक ट्रे बना हुआ था. उसके पापा जो है थोड़ा साइड हो गए जिससे कि ट्रैक्टर सामने से गुजर जाए. Slowed down to allow a tractor, यहाँ आपका assonance is there. The vowel O has been repeated. Slowed down, allow, tractor. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? और राजवीर ने फिर से जो है ही केम अप विथ हिज नॉलेज. उसने कहा ये सेकंड सीजन है ना जब आपके छोटे छोटे फ्लावर्स जो सॉरी जो टी होते हैं वो स्प्राउट करते हैं. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईल्ड्स द बेस्ट टी. ये वाले जो स्प्राउटिंग सीजन है ये आपका मई जून जुलाई रहता 3 महीने, और ये जो पत्ते होते हैं ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. Pranjal's father said in surprise. This has come in the paper कि why did his father say like this? उसके पापा ने ऐसा क्यों बोला? मतलब he had researched well before he came to that place. मतलब वहां आने से पहले उसने उस जगह के बारे में जो है सब कुछ छानबीन कर लिया था. So that is why his father was very much surprised. You seem to have done your homework before coming. Yes, Mr. Barua, but I hope to learn much more while I am here. लेकिन मुझे और भी यहाँ पे लर्न करना है. जब तक मैं यहाँ पर हूँ आई एम गोइंग टू लर्न. So thus this chapter is about the tea garden. It is about the elaboration of the tea garden, how they are एक ही साइज में कैसे वो काट के उन्हें रखा जाता है. एंड देन वहाँ पर जो है देर इज ऑल्सो एन एग्ली बिल्डिंग जहाँ पे शायद दैट इज एन इंडस्ट्री दैट मे बी प्रोसेसिंग द टीज. एंड देन हाउ दे वेंट, रास्ता कैसा था, all the description has been given in this chapter, that is tea from Assam.